पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। या देवी सर्वभूतेषु या देवी विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु
दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः बोल हरि 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 बोल बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल बोल हरि 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 बोल बोल हरि केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि बोल भाव भावेश्वर महादेव तड़केश्वर महादेव की भगवती पीताम्बरा मात की भगवती दुर्गा मात की ब्रह्मलीन श्री सद्गुरुदेव स्वामी अखंडानंद जी महाराज की ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। परम्बा भगवती दुर्गा एमनी ज प्रेरणाथी एक सत्संकल्पનું ઉદય થયું। આદિવાસી ભક્ત સમાજ એમાં જુદા જુદા ગામોમાં નવચંડી યજ્ઞ કરવાનું ભગવતીની પ્રેરણા થઈ। 21 નવચંડી વિદ્યાનંદ તું કરાવો બધા ભક્તો પાસે અને માતાનો સંકલ્પ હતો, ભગવતીનો સંકલ્પ હતો એટલે તો પૂર્ણ થવું જ જોઈએ અને થાય જ છે। એટલે આ યાત્રા ભેસદરા ગામથી શરૂ થઈ 2 જાન્યુઆરીએ અને આજે 10મી માર્ચે એક ભાઈએ મને કહી દીધું હતું કે વલસાડમાં પણ કરાવજો નહીં। તો મેં કહ્યું કોઈ વાંધો નહીં, વલસાડમાં બી મારા આદિવાસી ભક્તો છે
અને કરી લેશે. એટલે મેં દિનેશને ફોન કર્યો, દિનેશ મળવા આવજે. અને એને નવચંડીમાં જ બોલાવ્યો. એ જોઈને એને બી થઈ ગયું કે મારે તો કરાવવી જ છે, તારીખ આપો. બહુ જૂનો સંબંધ છે છોટુભાઈના સમયથી. છોટુભાઈ એટલે દિનેશના દાદા. પિતા શ્રી રમણભાઈ એ મારા શિષ્ય હતા, પણ દાદા મારા ગુરુદેવના શિષ્ય હતા. જૂની પરંપરા. આ ચોથી પેઢી મારી સામે છે. હું નસીબદાર છું. પાંચમી પેઢી બી આવી જશે ને તો પછી મારા માટે તમે સોનાની સીડી બનાવજો. એમ કહે છે ને, પાંચમી પેઢી આવી જાય તો સોનાની સીડી પર ચડાવવું જોઈએ. તો ઉન્નતિને છોકરો છોકરી થઈ જાય તો મારા માટે સોનાની સીડી તૈયાર કરજો. આટલા વર્ષો સુધી સંબંધો સચવાય અને એ બી સારી રીતે, પ્રીતિપૂર્વક, શ્રદ્ધાપૂર્વક, સમર્પણપૂર્વક, સામાન્ય વાત નથી દીકરાઓ. સગાવાલાઓમાં રાગદ્વેષ થઈ જાય છે, બીજાની તો વાત જ શું. અને મારી સાથે આજે આટલા વર્ષોથી જોડાયેલા પરિવારો છે બધા. અચ્છા, જો ભગવતીએ બી પ્રેરણા કરી તો આદિવાસી સમાજમાં તો નવચંડીઓ કરાવો. તો વિશેષ નવચંડીઓ જેટલી બી આપની થઈ છે એ આદિવાસી સમાજમાં જ થઈ છે. એક જ ને બે વાપીમાં થઈ અને એક માનધરાજીને ત્યાં મોતીવાડામાં થઈ. 20માંથી પણ મેજોરિટી એટલે 17 આપણા આદિવાસી સમાજમાં થઈ. અને આગળ જે બે થવાની છે, એક તો સિલવાસામાં ડોકમરડી અર્જુનભાઈને ત્યાં, અને છેલ્લી 8મી એપ્રિલના દિવસે મારી બેન ચંચલને ત્યાં. તો લગભગ આટલી બધી નવચંડીઓ માત્ર આપણા ભક્તોમાં થઈ રહી છે. અને આ નવચંડીઓ કરવાનો તાત્પર્ય એકમાત્ર એવું છે દીકરાઓ, સમાજમાં જાગૃતિ, સનાતન ધર્મ પ્રત્યે ચેતનાનો ભાવ અને તમારી સુખ અને સમૃદ્ધિ સાથે સાથે તમારી લક્ષ્મી ટકે. ચોમાસામાં વરસાદ પડે, નદીઓમાં પૂર આવે, પણ આગળ ડેમ બાંધવામાં આવ્યું હોય સારો તો પાણી ત્યાં ટકે, નહીં તો બધું પાણી દરિયામાં વયું જાય. તો આજે આદિવાસી સમાજ મારું, વિશેષ કરીને એમાં બી ઢોળિયા સમાજ સુધરેલો સમાજ ગણાય છે. ગુલાબભાઈને ખુશી થઈ રહી છે કે મારા સમાજ માટે બોલવામાં આવી રહ્યું છે. પણ બધા જ છે. આપણા કુકના બી બહુ સારા થઈ ગયા છે, વારલીઓ પણ સારા થયા છે. તો આ જેટલો બી સમાજ છે, પછાત જેને ગણાવવામાં આવતું હતું, આજે હું કહીશ મારા બ્રહ્મલીન સદગુરુદેવના પુણ્ય પ્રતાપે અને એમને તે કાલમાં જ્યારે બળદગાડા અને પાડાગાડાની સવારી કરીને પ્રચાર કરવામાં આવતું હતું, તે સમયથી જે બીજારોપણ થયું એ આજે મોટું ઝાડ થઈ ગયું છે. મોટું ઝાડ થઈ ગયું. આ શ્રેય બ્રહ્મલીન સદગુરુદેવ સ્વામી અખંડાનંદજી મહારાજના ફાળે જાય છે.
ખૂબ જ મહેનત કરી છે, ખૂબ જ તપસ્યા કરી છે આ મહાપુરુષે. સનાતન સંસ્કૃતિ એનું પ્રચાર પ્રસાર એટલે સમજો તમે ધાર્મિક ક્રિયાઓ. અને એ ધાર્મિક ક્રિયાઓ શું કરે છે તમને ખબર? ડેમ બાંધવાનું કામ કરે. જેમ તમારે દમણગંગામાં ખૂબ પાણી આવી જાય તો એના ઉપર કયો ડેમ છે? મધુબન ડેમ. પાણી ભર્યો રહે તો તમારે હંમેશા 12 માસ માટે સારી વ્યવસ્થા પાણીની થઈ જાય છે. એવી જ રીતે જ્યારે તમારા પાસે લક્ષ્મી આવી રહી હોય તો એના માટે ડેમ બનાવવાની જરૂર છે, જેનાથી એ ટકે, દીર્ઘકાલ પર્યંત ટકે. દીર્ઘકાલ એટલે લાંબા ગાળા સુધી આ ટકે લક્ષ્મી. એના સારું આ યજ્ઞાદિક સત્કર્મ કરાવવામાં આવે છે. એમ સમજો આ ડેમ બનાવવામાં આવી રહ્યો છે. આ દિનેશભાઈએ પણ અહીંયા એક ડેમ બાંધી દીધું છે. આ સોસાયટી વાળાઓને બી ફાયદો થશે એનાથી. એક નવચંડી યજ્ઞ કરે કોઈ વ્યક્તિ તો એનો પ્રભાવ લગભગ 25 માઇલ સુધી જાય. કેટલા માઇલ સુધી? 25. અને સત્ચંડી યાગ કરવામાં આવે તો ચતુર્ગુણમ એટલે કે 100 માઇલ. 100 માઇલ જેટલું વાતાવરણ એક સત્ચંડી કરવાથી સારું બને. અને એમાં બી સહસ્ત્રચંડી કોઈ કરી દે તો 1000 માઇલ સુધીનું વાતાવરણ સારું થાય. અને લક્ષ્ય ચંડી થઈ જાય તો 1,00,000 માઇલ સુધી યોજન કહેવામાં આવે છે. इतना बड़ा विस्तार पवित्र हो जाता है, वातावरण शुद्ध हो जाता है लक्ष्य चंडी करने से. और मेरे आदिवासी विभाग का ये सौभाग्य है कि इस समय वर्तमान में श्री सद्गुरु धाम भरूमाल में लक्ष्य चंडी चल रही है पाठात्मक. और इसकी पूर्णावति होगी 15 दिसंबर से और 24 दिसंबर तक. बहुत बड़ा आयोजन ये होगा लक्ष्य चंडी का. पहले मोटा पोंडा में किया था अपने ओम कच्छ फलिया में. इसी तरह से ये भी होने वाला है. तो चंडी का बहुत ही प्रभाव है मित्रों. कलौ चंडी विनायकौ, कलौ देवो महादेवः. कलयुग के अधिष्ठात्री देवता अगर कोई है तो उनका नाम है महादेव. तुम तो भाग्यशाली हो, बाजू में ही तड़केश्वर है, रह रहे हो उसके पड़ोस में महादेव है. और अपने यहाँ उधर आ जाओ तो कौन बैठा है? भावेश्वर. महादेव की छत्र छाया में हैं हम सभी लोग. और वे कलयुग के अधिष्ठात्री देवता हैं. और वैसे ही चंडी, वैसे देखा जाए ना तो महादेव की जो फैमिली है ना उसी का साम्राज्य है इस समय. चंडी शिवा है, शिवा शिव पत्नी है. वो इस समय डिफेंस मिनिस्ट्री का काम संभाल रही है. और गणपति महादेव के लड़के वो फाइनेंस का काम संभाल रहे हैं. रिद्धि सिद्धि किसके पास है बोलो? जोरती बोलो. हुई गया कि हमलाई छे कि नहीं? रिद्धि सिद्धि कोनी पत्नी छे? हाँ तो जोरती बोलो ने. दादू हो तो दादा नु नाम तो लो कि गणपति दादा, गणपति बापा छे कि नहीं? અને રક્ષા કરવાનું કામ આ પ્રાપ્ત લક્ષ્મી જે છે એનું રક્ષણ કરવાનું કામ અને દુષ્ટોને ખૂબ સારું પાઠ ભણાવવાનું કામ કોણ કરે? બીજા દાદા છે હનુમાન દાદા. કયા દાદા? હનુમાન દાદા. હાથમાં શું રાખે? गदा राखे, लगाए सीधाई. रावण जैसे रावण को ठिकाने लगा दिया तो सामान्य की तो बात ही क्या.
और ये हनुमान दादा कौन है पता है? भव रुद्र के अवतार है, भगवान शिव के। यानी सारी फैमिली इस समय महादेव जी की है अनिल भाई। इसलिए तुम हम महादेव वालों से जुड़ के रहोगे तो सुखी रहोगे, नहीं तो सारे सब दुखी हो जाओगे। इसलिए महादेव के साथ जुड़े रहो। महादेव इस समय सर्वेश्वर हैं, सभी को संभालने का काम कर रहे हैं। और उसमें पराम्बा भगवती दुर्गा देवी भागवत के माध्यम से कुछ प्रसंग मैं आपको सुनाया करता हूँ। आज भी थोड़ी चर्चा करूँगा इसके लिए। भगवान सुखदेव, श्रीमद् भागवत के सुखदेव अलग हैं। वो पाद्म कल्प के हैं, ये ब्राह्म कल्प के हैं जिनकी कथा हो रही है। कल्प भेद से अलग अलग होते हैं। है व्यास पुत्र ही, वेद व्यास के ही पुत्र हैं सुखदेव। सुखदेव जब बड़े होने लगे, विद्याध्ययन के लिए साक्षात बृहस्पति के साथ में संबंध जोड़ा गया। देवताओं के गुरु बृहस्पति, उनसे उन्होंने विद्याध्ययन किया, लेकिन संतोष नहीं हुआ। देव गुरु बृहस्पति से विद्याध्ययन करने पर भी सुखदेव को संतोष नहीं हुआ, क्योंकि उनका जो मन था वो विरागी था, वैराग्यवान था। बृहस्पति विरागी नहीं थे, वो संसारी थे, विवाहित थे, लौकिकता थी उनमें भी। और सुखदेव के अंदर मुमुक्षा थी, जिज्ञासा थी, वैराग्य था, समदम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान रूप षट संपत्ति से वो सुशोभित हो रहे थे। आ गए पिता के पास में, बृहस्पति को भी छोड़ करके। जो विरक्त होता है ना नारायण, त्यागी जो होता है, वो किसी की परवाह नहीं करता है, कितना ही बड़ा लाट साहब क्यों ना हो। मेरे गुरुदेव एक बात सुनाया करते थे। बम्बई में एक कोहिनूर मिल हुआ करती थी किसी जमाने में, कपड़े की। कापड़िया उसका मालिक हुआ करता था। शायद उसके बाप के नाम से तुम नहीं पहचानो, लेकिन उसकी बेटी के नाम से पहचान लो कि डिम्पल कापड़िया, जिसका राजेश खन्ना के साथ ब्याह हुआ था। उसका बाप एक भारती जी महाराज करके महापुरुष थे, शंकर चैतन्य भारती, वाराणसी में रहते थे। बड़े विद्वान, बड़े विद्वान। श्री हर्ष का उनको अवतार माना जाता था। मेरे गुरुदेव उनसे ही विद्या अध्ययन किए हुए थे। जब नासिक कैलाश मठ के महामंडलेश्वर बन गए तो गुरुदेव ने उनको आमंत्रित किया। वो महात्मा अपने जीवन में कभी वाराणसी छोड़ के बाहर नहीं निकले। पहली बार नासिक कैलाश मठ आए, और आए तो 6 महीने तक हमारे गुरुदेव के पास में रहे। उनकी कीर्ति बहुत विस्तृत थी। महारानी राजमाता नेपाल वो दर्शन करने के लिए आया करती थी, उनकी सेवा के लिए होती थी। प्रसिद्ध संत थे, लेकिन बिल्कुल विरक्त। जब मेरे गुरुदेव के पास नासिक कैलाश मठ आए तो उन्होंने कहा, देख अखंडानंद, वो तो यही बोलते थे क्योंकि उनके शिष्य थे, पढ़े थे उनसे। तुमने टाइल लगाई है, मैं इस टाइल पे नहीं सोऊंगा, इसलिए इसके ऊपर गोबर और मिट्टी से पहले लेप कर। तो टाइल के ऊपर गोबर और मिट्टी से लेप किया गया। फिर वो अपनी चटाई साथ में लाए थे, सादड़ी जिसको अपने गुजराती में कह सकते हैं, वाराणसी से लाए थे।
वो चटाई बिछाई उसके ऊपर, उसी चटाई के ऊपर वो सोते थे। तब ये कापड़िया सेठ को मालूम पड़ा कि भारती जी महाराज कैलाश मठ आए हैं, दर्शन करने के लिए आया। तो मेरे गुरुदेव से कहने लगा कि महाराज हमको दर्शन करवा दीजिए, आशीर्वाद लेना चाहते हैं। बोला भाई उनका दरवाज़ा बंद ही रहता है, खाली शाम को जाते हैं इवनिंग वॉक के लिए, घूमने के लिए, तब तुम दर्शन कर लेना। बाकी हमारी किसी की ताकत नहीं कि जाके उनका दरवाज़ा हम खटखटाएं। शाम को 5 बजे हो जाया करते थे भ्रमण के लिए, घूमने के लिए। दरवाज़ा खुला, मेरे गुरुदेव ने कापड़िया से कहा कि जाओ दर्शन कर लेना, अभी आ रहे हैं नीचे। मेरे गुरुदेव के शब्द में आपके सामने बोल रहा हूँ। वो कापड़िया सेठ, कोहिनूर मिल का मालिक, इतना बड़ा धनाढ्य व्यक्ति, वो साष्टांग प्रणाम कर रहा है और स्वामी जी ने उसकी तरफ आंख उठा के भी नहीं देखा और निकल गए। वो हाथ जोड़ करके खड़ा रह गया। तब मुझे मेरे गुरुदेव कहते हैं कि विद्या, हमने शास्त्र में पढ़ा था निष्प्रियस्य तृणम जगत। जो निष्प्रिय व्यक्ति हो जाता है उसके लिए सारा जगत एक तणकले की तरह से हो जाता है। तणकला समझते हो ना? हाँ। निष्प्रियस्य तृणम जगत, जो निरपेक्ष हो जाते हैं, जिन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, उनके लिए जगत तिनके के समान हो जाता है। वो मैंने आंखों के सामने देखा कि उस महापुरुष ने झांका तक नहीं और निकल गया। ये भी नहीं, हमारे पास तो कोई आएगा केम छो, તમારું નામ શું છે, અરે તારે શું કરવાનું છે, નામ પૂછીને કોઈ લગ્ન કરવાના છે, છોકરા છોકરીઓને પરણાવવાના છે। क्योंकि संबंध बनाना है, आकांक्षा है कि धर्म का प्रचार हो, लोगों के साथ संपर्क बढ़े, सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार हो। वो महापुरुष को तो कोई पड़ी ही नहीं थी किसी की भी। निष्प्रियस्य तृणम जगत, जो निष्प्रिय हो जाता है उसके लिए जगत तिनके की तरह से हो जाता है। ये सुखदेव जी महाराज भी ऐसे ही थे, बृहस्पति को छोड़ के आ गए। अब देवताओं का गुरु वो पढ़ाने को बैठा हो और कहा नहीं तुम्हारा पढ़ाया हुआ हमको गले नहीं उतर रहा है, ठीक नहीं लग रहा है। तुम मोह की बात करते हो, माया की बात करते हो, और मैं माया से पर होने की बात करता हूँ। वेदाध्ययन तो कर लिया, वहां पर वापस लौट के आ गए। व्यास ने कहा विद्याध्ययनम संजातम, तुम्हारा विद्याध्ययन संपूर्ण हो गया। सुखदेव ने कहा संपूर्ण हुआ कि नहीं ये तो मैं नहीं कहता, लेकिन हो गया, ये बात पक्की है कि हो गया। तो हे पुत्र, विद्याध्ययन के पश्चात, ब्रह्मचर्य आश्रम के पश्चात गृहस्थ आश्रम स्वीकार करना चाहिए और तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए। अब सुखदेव को हंसी आ गई और कहने लगे पिताजी, मैं वो बृहस्पति के पास से इसीलिए तो यहाँ आ गया छोड़ करके, और आप भी मुझे बंधन की बात कर रहे हो, बंधन में डालना चाहते हो। निद्रा सुख विनाशार्थम मूर्खस्तु दार संग्रहम, सुख चैन से सोना नहीं चाहता हो कोई तो उसे विवाह कर लेना चाहिए। क्यों भाई अनिल? बीबी बाजू में नहीं, बीबी बाजू में बैठी है। पीछे से क्यों? तो आगे से बोल रहा है, तो आगे सामने ही है। मैं बोलता हूँ ना कि आगे सब आशीर्वाद सामने आ जाएगा।
करोति वंचितो धात्रा दुखाय न सुखाय च। विधाता ने एक बहुत खूबसूरत मजाक किया है संसारियों के साथ, बहुत खूबसूरत मजाक किया है। किस लिए किया है? बोला दुखाय, दुख के लिए, न तो सुखाय, सुख के लिए नहीं। क्योंकि उपनिषद कहते हैं परांचिखानी व्यतीर्णत स्वयंभुज तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत्त चक्षुः अमृतत्वम इच्छन। ध्यान देना बेटा, सुख और दुख इसकी परिभाषा क्या है? अनुकूल वेदनीयम सुखम, जो हमारे अनुकूल होता है या अनुकूल व्यवहार करता है तो हम वहां पर सुख का अनुभव कर लेते हैं। और प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, और अगर हमारे प्रतिकूल कोई व्यवहार कर लेता है तब हमको लगता है ये अच्छा नहीं किया। क्या जीवन में ये अनुभव नहीं होता है तुमको? बोल दो कि नहीं होता है। फिर कैसे कह सकते हो कि तुम सर्वांश में सुखी हो गए हो? संसार में रह के और कोई सुखी हो ही नहीं सकता, दावे के साथ कहता हूं। केवल पति पत्नी की बात नहीं करता हूं। क्या भाई का सुख है, क्या बेटे का सुख है, क्या बेटी का सुख है, क्या वो हमारे अनुकूल चल रही है, क्या जवाई का सुख है, क्या संबंधी और स्वजनों का सुख है। और अगर ये सारे सुख भी आपको प्राप्त हो गए भगवत कृपा से, तो क्या आपने अपनी आत्मा के तत्व को जान लिया है, आत्मस्वरूप को पहचान लिया है? और जब तक आप आत्मस्वरूप को नहीं पहचान लेते, संसार में सुखी हो ही नहीं सकते। जब तक आत्मानंद का अनुभव नहीं कर लोगे, अपने आप से सुखी रहने का अनुभव नहीं कर लोगे, तब तक पराश्रित व्यक्ति को सुख हो ही नहीं सकता। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा ना, पराधीन सपने हूँ सुख नाई। अपने किसी को बोल दिया कि यार तेरे बिना हमसे रहा जाता नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? दुख को निमंत्रण दे दिया। तेरे बिना रहा नहीं जाता, ऐसा हमने बोल दिया किसी को भी, XYZ कोई भी हो। क्या किया आपने? दुख को आमंत्रण दे दिया। अब वो सामने वाले की इच्छा हो तो आपको सुखी करे, सामने वाले की इच्छा हो तो आपको दुखी करे। आप कुछ नहीं कर सकते वहां। इसलिए सुखदेव का कहना बहुत योग्य है, बहुत उचित है। वो कहना चाह रहे हैं विधाता ने बहुत खूबसूरत मजाक किया है हमारे साथ। हमारी जो इंद्रियां हैं, ये बताइए इन इंद्रियों का स्वभाव कैसा है? पानी किधर को बहता है, नीचे को कि ऊपर को? अगर ऊपर पानी को ले जाना होगा तो क्या लगाना पड़ेगा? वाटर पंप। बिना वाटर पंप के ऊपर टांकी में पानी जाएगा नहीं ना। अन्यथा पानी का स्वभाव तो ठीक इसी तरह से इंद्रियों का जो स्वभाव है वो विषयों की ओर ही प्रवाहित होता है। ऐश्वर्या राय तुम्हारी बीवी बन के क्यों ना आ जाए, लेकिन उससे खूबसूरत आ जाए तो तुम्हारी आंखों में चमक आ जाएगी और लपक लपक करके उसको देखने लगोगे। तुम कितने अच्छे सिंगर हो जाओ, अगर तुमसे अच्छा श्रेष्ठ कोई गाने वाला आ गया और उसके स्वरों ने आपके कानों के अंदर मधु घोल दिया, तो बोलिए आप सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे उसको? घरवाली कितनी बढ़िया रसोई बना करके खिलाती हो, फिर भी बाहर चाटने जाते हो कि नहीं होटलों के अंदर? लोगों का स्वभाव है, क्योंकि इंद्रियां लपड़ लपड़ करती ही रहती है। अरे घर के अंदर नमक ज्यादा हो जाएगा दाल के अंदर तो चुपचाप खा लोगे पानी डाल के, कि बीवी को सुनाओगे? ईमानदारी से बोलो। बोल अनिल, क्या करेगा?
नहीं पानी डाल के खा लेगा। वैसे खा लेता हूँ, बोलता भी नहीं। जब ये खुद खाते हैं तो बोलते हैं कि आपने बोला क्यों नहीं, पूछ लो, ये बैठी है। अरे महात्मा पुरुष, तेरे को तो माला पहना दिया मैंने पहले ही और दोबारा पहना दूंगा। हाँ, बैठी है ये। बहुत बढ़िया। 28 साल हो गया इसको, कभी ऐसा नहीं बोला कि मैं खाना खराब बनाया या ये चीज तूने कम कर दी। अरे वाह, जिते रसे जितम सर्वम। प्रहलाद जी महाराज ने भगवान नृसिंह की स्तुति करते हुए ये बात कही है कि जिसने रसनेन्द्रिय के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया उसने सब कुछ जीत लिया। तुमने तो रसनेन्द्रिय पर विजय प्राप्त कर लिया, बहुत बड़ी बात, बधाई के पात्र हो। आपके सामने झूठ नहीं बोल सकता तू, और ये बैठी है। अरे भाई झूठ क्यों बोलोगे, मैं तो तेरे से क्यों पूछता हूँ, इन सबसे क्यों नहीं पूछा, क्योंकि ईमानदार तुम ही लग रहे हो। इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बाकी के लोगों से क्यों नहीं पूछ रहा हूँ। क्योंकि गुलाब भाई से पूछता तो कहते था मैं थाली उठा के फेंक देता हूँ। और एक बात सुन लो, अपवाद कभी सिद्धांत के रूप नहीं होते हैं। तुम अपवाद हो सकते हो कि तुम खा लेते होंगे, बाकी तुम्हारे बाल बच्चे भी खा लेते हैं। हाँ हो गया, वो उनकी जाने। और तुम सामने देख रहे हो ना, देख रहे हो, जानते हो ना, वो उनकी जाने क्यों बोल रहे हो। तुम जानते हो तभी बोल रहे हो ना। तो इसी तरह से बेटा, कोई भी क्यों ना हो, एक दृष्टांत है मेरा, आर्गुमेंट नहीं, आपको समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि इंद्रियों का स्वभाव है कि वो हमेशा विषयों की ओर ही जाएगी और जो अच्छा लगेगा उसकी ओर ही जाएगी, बुरा लगने वाले की ओर नहीं जाएगी। ये इंद्रियों का स्वभाव है। यही तो खूबसूरत मजाक किया विधाता ने। अच्छा, अब मैं बोलता हूँ इन इंद्रियों से, ये सौंदर्य को देख के प्रसन्न होती है, ये श्रवणेन्द्रिय सुनकर के अच्छा लगता है, रसनेन्द्रिय स्वाद लेकर के प्रसन्न होती है, त्वगेंद्रिय स्पर्श करके प्रसन्न होती है। लेकिन क्या इन इंद्रियों के द्वारा कभी अपनी आत्मा को देखने का प्रयत्न किया? क्या इन इंद्रियों का विषय तुमने अपनी आत्मा को, अंतरात्मा को कभी बनाया? अगर अंतरात्मा को देखने का प्रयत्न नहीं किया तो आप कितना ही सुख का ढोंग कर लीजिए, अंत में दुख ही हासिल होने वाला है। संसार में सुख की परिकल्पना करना ही व्यर्थ है। सरती गच्छति इति संसार है, जो सरकता रहे उसका नाम संसार। बोलो तुम्हारे बाप दादी सरक गए कि नहीं सरक गए? बोलो। अच्छा, वो सरक गए तो तुमने नारियल फोड़ा कि दुखी हुए? दुख हुए। अपने सरकेंगे तो अपने बाल बच्चे जो भी होंगे, चेले चपाटे, वो दुखी होंगे नहीं? दुख आया नहीं? दुख स्वाभाविक है बेटा, ये आने ही वाला है, क्योंकि मोह है। और जहां जहां मोह रहेगा परिणाम दुख होगा ही होगा। अर्जुन जैसे बुद्धिशाली तो आप और हम लोग नहीं हो सकते हैं। वो तो नर ऋषि का अवतार था, लेकिन जो ही अष्टादश अक्षोहिणी सेना के बीच में उसने कहा रथम स्थापय में अच्युत, हे कृष्ण मेरे रथ को तुम दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो। भगवान ने कहा काहे को मुसीबत मोल ले रहे हो, यहाँ से नहीं दिख रहा है क्या? बोला नहीं, दोनों सेना के बीच में चलो। अब वो तो ड्राइवर है, ड्राइवर को कोई कुछ बोलेगा सेठ तो उसको चलाना पड़ेगा गाड़ी। भगवान ने कहा मैं तो तेरा सारथी हूँ, तू जहाँ कहेगा वहाँ ले जाके खड़ा कर दूंगा, लेकिन परिणाम क्या आएगा उसके लिए तू सावधान हो जाना। और देखते ही परिणाम क्या हुआ, ऐशाम अहम एते मम, मैं इनका हूँ और ये मेरे हैं, मोह आ गया। और मोह का परिणाम क्या हुआ? शोक, दुख। और कह दिया न योत्स्य इति गोविंद, हे गोविंद मैं युद्ध करना चाहता नहीं। किस लिए हुआ? मोह के कारण। मोह किससे हुआ? ये मेरे हैं और मैं इनका हूं। इसलिए संसार मात्र पिताजी दुख का कारण है। आप मेहरबानी करके और मेरी शादी का विचार छोड़ दीजिए। किसने कहा ये बात? व्यास से सुखदेव ने। शोचंतम पितरम दृष्ट्वा दीनम शोक परिप्लुतम, व्यास को अत्यंत दीन देख करके, शोक से परिप्लुत देख करके
और कहने लगे सुखदेव, अहो माया बलम चोग्रम, अहो इस माया का बल कितना उग्र है। यन मोहितम महापंडितम, अब वेद व्यास से बड़ा कोई पंडित अपने यहाँ हुआ है? वाल्मीकि के बाद किसका नाम आता है? वेद व्यास का। ऐसे व्यास, और वो वेदांतस्य च कर्तारम सर्वज्ञम वेद संविदम, वेदांत शास्त्र के कर्ता रचयिता, और फिर भी व्यामोह को प्राप्त हो गए, फिर भी दुखी हो रहे हैं। न जाने काच सा माया, ये माया बहुत ही विचित्र है, माया बहुत ही विचित्र है। और इस माया के खेल में बेटा सब लगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं। चींटी से लेकर के और हाथी पर्यंत भगवान ने किसी को भी छोड़ा, चींटी से लेके और हाथी पर्यंत किसी को नहीं छोड़ा। सभी माया के चक्कर में पड़े हुए हैं। एक राजा हुआ करता था नारायण, उसके यहाँ के ऊपर एक जादूगर आया, अपना खेल दिखा रहा था। प्रजा ने उस खेल को देखा, जाकर के महाराज से कहा, महाराज आप भी उस जादूगर को बुलाइए सभा में और उसका खेल देखिए, आप खुश हो जाएंगे। महाराज ने कहा ठीक है, बुलाया जाए। अब बुलाया उस जादूगर को। महाराज ने कहा ऐसा खेल दिखाना जो आज तक किसी ने नहीं दिखाया। तो जादूगर बोलता है, महाराज जैसी आपकी आज्ञा, लेकिन इनाम देना पड़ेगा। महाराज ने कहा जो इच्छा हो सो तुम मांग लेना, हम तुम्हारे को इनाम देंगे, लेकिन खेल ऐसा दिखाना कि आज तक किसी ने नहीं दिखाया। अच्छा महाराज, आप युद्ध में जाते रहे होंगे? बोला हाँ, युद्ध तो होते रहे हमारे से, लेकिन क्या कभी आपने देवताओं से युद्ध किया? तो राजा ने कहा हम पृथ्वी के लोग, हम देवताओं से कहां से युद्ध करेंगे? बोला मैं जाता हूं, देवताओं से युद्ध करता हूं, और आपके पास एक एक देवता की मुंडी काट करके और फेंकूंगा। बोला क्या बात करता है? बोला देखिए अभी जाता हूं, लेकिन ये मेरी जो पत्नी है इसको आप संभाल के रखना, मेरी पत्नी को आप संभाल के रखना। पूरी पब्लिक के सामने, प्रजा के सामने राजा ने कहा हाँ ये मेरी पुत्री है, बेटी है, बेटी की तरह इसको रखूंगा, तो चिंता नहीं करना। बोला देखिएगा महाराज, अपने वचन के ऊपर रहना, ये बहुत खूबसूरत है, इसको संभाल के रखना। बोला हाँ बिल्कुल संभाल के, हमारे रनिवास के अंदर उसको हम रखेंगे, जहाँ रानियां रहती हैं वहीं पर इसको रखेंगे, और बहुत संभाल के रखेंगे, चिंता मत करो। अच्छी बात है, आप मेरी पत्नी को संभालिए, मैं जा रहा हूं। उसके गले में एक झोला था, उस झोले में से उसने एक कच्चे सूत का बंडल निकाला, वो माला बनाने वाले जैसे नहीं रखते गोला, सूत का गोला, वो भी कच्चे सूत का है, कच्चा धागा। वो उसमें से जेब में से, उसमें झोले में से निकाल के और ऐसे ऊपर फेंका, ऊपर फेंका तो जा रहा ऊपर ही जा रहा वो गोला। सब देख रहे हैं कि एकदम आकाश के अंदर वो गोला जा रहा है। महाराज मैं जा रहा हूं युद्ध के लिए, मेरी पत्नी का ध्यान रखना। बोला हाँ जाओ। और उस कच्चे धागे को पकड़ा और वो ऐसे 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 फटाफट पकड़ के अपने, अगर उस कच्चे धागे को ऐसे खींचे तो टूट जाए, लेकिन वो भाई उस कच्चे धागे के ऊपर चढ़ता गया, चढ़ता गया, चढ़ता गया, इतना ऊंचा चले गया कि दिखाई देना बंद हो गया। और ऊपर जाकर के और फिर तलवारों की गड़गड़ाहट, नगाड़ों की गड़गड़ाहट, ढाल, त्रिशूल, इन सब की गड़गड़ाहट, ऊपर से आवाजें आने लगी। और सब लोग जो बैठे थे वो भी और राजा भी, भाई जबरदस्त युद्ध हो रहा है, जबरदस्त युद्ध हो रहा है। युद्ध होने लगा बड़ा,
तगड़ा। इतने में एक मुंडी नीचे आई, ये बुढ़ऊ की थी, वरुण देव की। हाँ, वरुण जी महाराज का सर काट के उसने नीचे फेंक दिया। लिखा हुआ था उस पे वरुण देवता। राजा और सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, भाई ये तो बड़ा सूरवीर है, बड़ा पहलवान आदमी निकला, स्वर्ग में जाकर के देवताओं से युद्ध कर रहा, मुंडी फेंक दिया नीचे वरुण देवता की। इतने में ही दूसरी मुंडी आई, लिखा हुआ अग्निदेव, उसमें से ज्वाला निकल रही। लोगों ने तालियां बजाना शुरू कर दिया। तुम तो नहीं बजा रहे हो, लेकिन वो लोग जो देख रहे थे ना वो बजा रहे थे। तुम भी बजा लो ना, कि वरुण देव की, अग्निदेव की। क्या नहीं, इससे मुंडियों के आ जाने से तुम्हारी नींद दूर हो जाएगी अगर सो रहे होंगे तो। ऐसे एक एक करके मुंडी नीचे आने लगी। इतने में दो मुंडियां एक साथ आई, जिन पे लिखा हुआ था अश्विनी कुमार। ये दोनों साथ ही रहते हैं, दोनों भाई जोड़े से रहते हैं। उन दोनों, अरे इसने डॉक्टर, देवताओं का डॉक्टर, उनका गला काट के नीचे फेंक दिया। ये तो बहुत बड़ा पहलवान आदमी है, ये पता नहीं क्या मांगेगा नीचे आकर के, कि मेरा राज्य ही नहीं मांग ले। कहेगा कि मैंने ऐसा आपको खेल दिखाया है जिसकी वो आज तक आपने हाँ देखा ही नहीं। अब नारायण छेले उसने इंद्र को भी नीचे पटक दिया। लिखा हुआ आया इंद्र देवता। एक एक करके देवताओं को धराशायी कर करके नीचे फेंकता रहा, और लोग देखते रहे, तालियां बजाते रहे। और इतने में ही वो उसी धागे को पकड़ के और नीचे उतरता है और सभा में आ गया। महाराज को प्रणाम किया, कहो महाराज कैसा लगा मेरा खेल? बोलो भाई खेल तो बहुत बढ़िया था, अब आपको इनाम तो देना पड़ेगा मेरे को। अब राजा भी घबराया कि पता नहीं क्या मांगेगा, इतना अच्छा खेल दिखाया, बड़ा खेल दिखाया। बोला मांग लो। बोला मांगूंगा तो बाद में, पहले मेरी घरवाली को दो, पहले मेरी पत्नी को बुलाओ, हम मिल के मांगेंगे, सलाह करेंगे आपस में क्या मांगना है। बोला ठीक है। भेजा गया किसी व्यक्ति को कि जाओ रनिवास में से इसकी पत्नी को लेके आओ। जब वहाँ रनिवास के अंदर से पत्नी को लेने के लिए व्यक्ति गया तो वापस अपना सा मुंह लेके लौट के आ गया। और उसने बोला इसकी घरवाली तो वहाँ नहीं है, इसकी घरवाली, मैंने पहले ही कहा था कि मेरी पत्नी को संभाल के रखना। तुम्हारी नीयत खराब हो गई मेरी बीवी के ऊपर, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है, इसलिए तुमने इसको छुपा के अंदर रख दिया है, तुम देना नहीं चाहते हो। अब राजा के ऊपर इतना बड़ा ब्लेम प्रजा के सामने लगा देना कोई सामान्य बात तो थी नहीं, इसलिए राजा भी उखड़ गया, प्रजा भी उखड़ी कि हमारा राजा तो ऐसा नहीं है। तो नहीं है तो लाओ मेरी बीवी, अब बीवी हो तो लाए ना अंदर से। उस जादूगर ने कहा कि मुझे मालूम है मेरी बीवी को तुमने कहाँ छुपा के रखा है। ला, मैंने छुपा के रखा है तेरी बीवी को? हाँ, चलिए मेरे साथ में बताता हूं। जेल की तरफ गया राजा को लेकर के, और वहां एक जेल से अंदर दूसरी जेल से थी, यानी 7 कोठे के अंदर, और वो अपने स्वामी का नाम ले लेकर के रो रही है। इस राजा ने मेरे को यहाँ बंद करके रखा हुआ, बंदी बना के रखा हुआ, अब राजा को काटो तो खून नहीं। ये क्या हो गया? मैं तो ऐसा नहीं था और मैंने तो ऐसा किया भी नहीं था, और इसने तो मेरी इज्जत का कांकरा कर दिया। स्वामी मुझे बचाओ, स्वामी मुझे छुड़ाओ। देखा राजन, मैंने कहा था नहीं। उसकी पत्नी को छोड़ा गया,
सभा में बुलाया गया, लाई गई उसकी पत्नी। देखा सबने कि हाँ पत्नी तो अंदर से ही आई है। राजा के लिए भी लोगों के मन में थोड़ी सी विचित्र भावना हुई कि ये राजा ने ऐसा किया होगा। जब पत्नी आ गई तो उसने ताली बजाई। बजाओ, वो गीता आ गई, बजा दो। दिनेश की बीवी। ताली बजाई और दोनों ने एक दूसरे की आंख में झांक करके कहा, क्या मांगना है सोच लो। पत्नी ने कहा, जाने दो, माफ करो, जाने दो, माफ करो। राजा देखता ही रह गया कि ये मेरे को माफ करने की बात, मैं सबको माफ करता हूँ और ये मेरे को माफ करने की बात कर रहा है। नहीं, तुम वो जो चाहे मांग लो। महाराज जाने दो, पहले ये बताओ कि मेरा खेल कैसा लगा। बोला, खेल तो बहुत अच्छा दिखा रहे थे, लेकिन अंत में तो इज्जत का कांकरा कर दिया कि नहीं। तब उस जादूगर ने कहा, क्या राजन आप इतने बड़े आदमी होकर के और ऐसी बात कर रहे हो। पहले ये तो सोचिए, मैं जब आया था तब अकेला था, बीबी लाया कब था साथ में। तब राजा ने ऐसे माथा खुजलाया। लोगों ने कहा, हाँ यार ये तो अकेला आया था, पत्नी तो थी नहीं इसके साथ में। उसने कहा, ये सब मेरी माया थी। एक सामान्य जादूगर की माया ने इन सब को प्रभावित कर दिया और देखते रह गए। तो संसार का सबसे बड़ा जादूगर तो कौन बैठा है? ऊपर बैठे महादेव भगवान बैठे। और उसी की ये माया है, जिस माया के कारण वेदव्यास जैसा ऋषि भी प्रभावित हो गया है और जिसके लिए कहना पड़ रहा है सुखदेव को, न जाने काच सा माया, न जाने कौन सी वो माया है। यन मोहितम महापंडितम, मेरे पिता जो इतने बड़े विद्वान हैं उनको भी मोह में डाल दिया। पुराणानाम च वक्ता निर्माता भारतस्य च, जिन्होंने महाभारत जैसा 18 पर्ववती महाभारत, जिसके 60 लाख श्लोक, अपने तो यहाँ 1 लाख ही मिल रहे हैं वर्तमान में, जिन्होंने लिख दिया, पुराणों को जिन्होंने बना करके रख दिया, ऐसा व्यक्ति मोह को प्राप्त हो गया। ताम यामि शरणम देवी या मोहयति वही जगह। सुखदेव कहते हैं, मैं उसी महामाया की शरण में जा रहा हूँ और उसी से प्रार्थना करता हूँ जिसने संपूर्ण जगत को मोह में डाल रखा है। हे माँ, तुम ही मेरी रक्षा करो। आज इतना ही। अब अगली नवचंडी में आगे का व्याख्यान सुनाऊंगा। ओम शांति शांति शांति।